नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए आपको सीधे ले चलते हैं जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बैकवर्ड क्लास को देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ గాని బీఆర్ఎస్ పార్టీ గాని బీసీలకు అనుకున్న మేరకు సీట్లు ఇవ్వలేదు. కానీ బీజేపీ ఈ రెండు పార్టీలకు కూడా అత్యధికంగా బీసీలకు సీట్లు ఇచ్చింది కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈసారి బీజేపీని గెలిపించి బీసీ సీఎం చేయాలి। मित्रों, केसीआर ने बैकवर्ड क्लास के लिए बजट में 3300 करोड़ रुपया 3300 करोड़ रुपया आवंटित किया, परंतु खर्चा सिर्फ 77 करोड़ किया। ये इनका छलावा है, बैकवर्ड क्लास के साथ धोखा है। మిత్రులారా, కేసీఆర్ గారు అత్యంత వెనుకబడ్డ సామాజిక వర్గాలు ఎంబీసీలకు బడ్జెట్ లో మాత్రం 3300 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించాడు. కానీ ఖర్చు పెట్టింది మాత్రము కేవలం 77 కోట్లు మాత్రమే। ఏ రకంగా బీసీలను ఈ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం మోసం చేసిందో, దగా చేసిందో ఒక్కసారి మీరందరూ కూడా ఆలోచన చేయండి। मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री बैकवर्ड क्लास के हैं और मोदी जी के रूप में भारत को पहला बैकवर्ड प्रधानमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। మోదీ గారి నేతృత్వంలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో మొదటిసారిగా 27 మంది ఓబీసీ కేంద్రంలో మంత్రులు చేసి వాళ్ళ గౌరవాన్ని పెంచితే, మొదటిసారిగా భారతీయ జనతా పార్టీ అత్యంత వెనుకబడ్డ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన మోదీ గారిని ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి చేసింది భారతీయ జనతా పార్టీ। मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने का काम किया और ओबीसी की सूची में अमेंडमेंट करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया। మిత్రులారా, జాతీయ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ కమిషన్ కు నరేంద్ర మోడీ గారు వాళ్ళ హక్కులు కాపాడడానికి ఒక రాజ్యాంగ హోదా కల్పించాడు। అంతేకాకుండా ఆ రాష్ట్రాలకు ప్రభుత్వాలకు పూర్తి స్వేచ్ఛనిచ్చి ఏ కమ్యూనిటీనైనా బీసీలో చేర్పించడానికి ఆ రాష్ట్రాలకే పూర్తి అవకాశం ఇచ్చారు మోదీ గారి ప్రభుత్వం। ऑल इंडिया कोटा स्कीम मेडिकल की, इसमें 27% रिजर्वेशन मोदी जी ने देने का काम किया। జాతీయ స్థాయిలో జరిగేటువంటి ఎంబీబీఎస్ ఎండి పరీక్షల్లో బీసీ బిడ్డలు డాక్టర్లు కావడానికి 27% రిజర్వేషన్ కల్పించింది మోదీ గారి ప్రభుత్వము। मित्रों, ये कांग्रेस और टीआरएस दोनों बैकवर्ड क्लास की विरोधी पार्टियां हैं। बैकवर्ड क्लास का भला केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर सकते हैं। మిత్రులారా, ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ, ఈ రెండు పార్టీలు కూడా బీసీ వ్యతిరేకులు, బీసీ విరోధులు। ఖచ్చితంగా బీసీలకు న్యాయం జరిగేదంటే అది భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే। నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వంలోనే బీసీలకు న్యాయం జరుగుతుంది। केसीआर ने सबसे बड़ा किसी का नुकसान किया है तो तेलंगाना के युवाओं का किया है। కేసీఆర్ గారు ఎవరైనా దగా చేసి మోసం చేసినంటే తెలంగాణలో యొక్క యువకులను మోసం చేశాడు। 7 साल में टीएसपीएससी की 6 कैटेगरी की परीक्षाओं में 16 बार पेपर लीक हुआ। ఈ ప్రభుత్వము యువకుల భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన కొలువుల నింపే దాంట్లో పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ 6 కేటగిరీలకు నోటిఫికేషన్ ఇస్తే పేపర్ లీకేజీల పేరు మీద వాళ్ళ జీవితాలన్నీ కూడా బుగ్గుపాలు చేశాడు ఈ కేసీఆర్ గారు। रिक्रूटमेंट में भ्रष्टाचार के कारण प्रवल्लिका और रहमत जैसे युवाओं ने आत्महत्या करनी पड़ी है। ఇవాళ ఈ పేపర్ లీకేజీల వల్ల ప్రవళికనే అమ్మాయి, మిగతా ఒక అబ్బాయి ఏ రకంగా ఆత్మహత్య చేసుకుని తల్లిదండ్రులకు భారంగా మారుతామని చెప్పి ఇది ప్రభుత్వం చేసిన హత్య, ఇది ఆత్మహత్యలు కాదు। ఇది हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 5 साल में ट्रांसपेरेंट तरीके से 2.5 लाख 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी।
యువకులారా మీరు భారతీయ జనతా పార్టీకి అవకాశం కనుక ఇచ్చినట్టయితే భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడితే 5 సంవత్సరాలే 2.5 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు నిర్దిష్ట సమయంలో ఆ ప్రభుత్వ కొలువులని కూడా భర్తీ చేస్తామని చెప్పి నేను హామీ ఇస్తా ఉన్నాను. मित्रों, तेलंगाना राज्य, इसका संघर्ष तेलंगाना की जनता कैसे भूल सकती? सरदार पटेल ने तेलंगाना को निजाम के शासन से स्वतंत्र कराया और केसीआर को ओवैसी के कारण हैदराबाद विमोचन दिन मनाने में शर्म आ रही है. मैं आज घोषणा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हम हर साल हैदराबाद विमोचन दिन को राज्य का उत्सव मानकर मनाने का काम करेंगे. మిత్రులారా, నిజాం నిరంకుశ పాలన నుంచి ఆ అరాచక పాలన నుంచి రజాకార్ల నుంచి ఏ రకంగా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఆ నిజాం మెడలు వంచి భారతదేశంలో విలీనం చేసి మనకు ఆ స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలు కల్పిస్తే ఈ కేసీఆర్ గారు ఆ యొక్క ఓవైసీ ఒత్తిడికి లొంగిపోయి 17 సెప్టెంబర్ అయితే తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవంతో అది జరపకుండా ఓవైసీకి లొంగిపోయాడు. కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రతి ఏటా ఈ తెలంగాణ ప్రజలు ఎవరైతే ఆ తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవం కోసం పోరాడాడో ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం ఆ దినోత్సవాన్ని జరిపి తీస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. मित्रों, केसीआर ने मुसलमानों को धार्मिक रिजर्वेशन दिया है जो संविधान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है. आप भाजपा सरकार बना दो, धार्मिक रिजर्वेशन को खत्म कर हम ओबीसी और एसटी का रिजर्वेशन बढ़ाने का काम करेंगे. ओबीसी और एसटी का रिजर्वेशन बढ़ाएं. మిత్రులారా, ఈ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాల కోసం రాజ్యాంగ విరుద్ధమైనటువంటి ముస్లింల కోసం మతపరమైన రిజర్వేషన్లు ఏదైతే కల్పిస్తా ఉన్నదో దానిని భారతీయ జనతా పార్టీ రద్దు చేసి ఆ 4% ఏదైతే రిజర్వేషన్ ఉందో అది ఓబీసీలకు ఎస్టీలకు ఆ రిజర్వేషన్ పెంచి ఆ వర్గాలకు మేము న్యాయం చేస్తాము. तो अमित शाह तेलंगाना के गढ़वाल में यहाँ जनता को संबोधित कर रहे थे. सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना की सरकार ने, केसीआर ने जनता के साथ धोखा किया है, युवाओं के साथ धोखा किया और खासतौर से जो पिछड़ा वर्ग है न सिर्फ उनकी अनदेखी की गई बल्कि जो अधिकार उनको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले. साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से जो युवा हैं उनको रोज़गार नहीं दिया गया, लेकिन बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो 2.5 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी. वहीं आगे बढ़ते हैं खबरों में. प्रधानमंत्री ने राजस्थान के भरतपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचार और प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर आड़े हाथों लिया. प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के सम्मान की रक्षा भी कांग्रेस सरकार नहीं कर पा रही है, ये शर्म की बात है. उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार जनता कांग्रेस को प्रदेश के कोने कोने से साफ कर देगी. कुछ लोग यहाँ खुद को जादूगर कहते हैं. अब उन्हें आज राजस्थान की जनता कह रही है 3 दिसंबर कांग्रेस छुमंतर. प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण की राजनीति इतनी सर्वोपरि है कि वो लोगों की जान से भी खिलवाड़ करने से बाज नहीं आती. कांग्रेस जहां जहां आती है वहां वहां आतंकवादी, अपराधी और दंगाई बेलगाम हो जाते हैं. कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही सब कुछ है. कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे इसमें आपका जीवन तक दांव पर क्यों न लगाना पड़े.
साथियों, कांग्रेस ने राजस्थान की महिलाओं के विश्वास को भी चकनाचूर कर दिया। जो मुख्यमंत्री खुद कहे कि महिलाएं रेप के फर्जी मामले दर्ज करवाती है, क्या वो महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं? उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर कटाक्ष भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस वाले मोदी को सिर्फ इसलिए गालियां देते हैं कि मैं प्रदेश में कई लॉकर खुलवा रहा हूं। ये ऐसे लॉकर हैं जहां जनता से लूटी गई गाढ़ी कमाई बंद है। राजस्थान कांग्रेस के लोगों को पूछोगे कि भाई क्या है, वो कहते हैं यार बाकी कुछ भी हो, बस लॉकर न खुल जाए। बाकियों को लग दिखता है, इनको लॉकर दिखता है। इनकी नींद हराम हो गई है कि मोदी लॉकर खोल रहा है और लॉकर में से सोना निकल रहा है, सोना। और कोई ये गलती मत करना कि आलू से बना हुआ सोना है। ये आपसे लूटा हुआ, चोरी किया हुआ माल से निकाला हुआ असली सोना है। ये काला धन, ये सोने के भंडार जो लॉकर से निकल रहे हैं, ये राजस्थान के नौजवानों को धोखा देकर के लूटे गए हैं। ये पेपर लीक घोटाले का पैसा है। भरतपुर के बाद प्रधानमंत्री नागौर जाएंगे। यहां के करनाल में स्थित वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे और फिर नागौर में आज की दूसरी और आखिरी विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जोधपुर के पिपाड़ सिटी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां भ्रष्टाचार, लूट और घोटाला होगा, वहीं जहां भाजपा होगी वहां विकास होगा। जहां कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी, जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां भ्रष्टाचार होगा। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां लूट होगी। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां घपला होगा। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां घोटाला होगा। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां छलावा होगा। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां परिवारवाद होगा। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां वंशवाद होगा। ये कांग्रेस के साथ जुड़े हुए नाम हैं। और जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहीं विकास होगा। एक तरफ जहां आज राजस्थान के भरतपुर में पीएम मोदी ने विजय संकल्प सभा को संबोधित किया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज भरतपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। खड़गे यहां भरतपुर जिले की वैर सीट और अलवर के तिजारा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार छोटे छोटे रोड शो और रैलियों में व्यस्त हैं। उन्हें भरोसा है कि उनकी गारंटियां फिर से कांग्रेस का हाथ मजबूत करेंगी। इसके अलावा अलवर जिले के बानासूर और दौसा जिले के बांदीकुई में भी बीएसपी के अध्यक्ष मायावती की सभा होगी। तो वहीं गंगापुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे। तेलंगाना में मौजूदा सरकार और उसके मुखिया केसीआर ताबड़तोड़ रैलियों में व्यस्त हैं। वो लगातार विपक्षी दलों पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो मौजूदा सरकारी योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी कांग्रेस और बीजेपी पर वो हमलावर हैं। वो कहते हैं कि ये दोनों दल नहीं चाहते कि एआईएमआईएम के नेता चुनाव जीतें। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के नामपल्ली उम्मीदवार माजिद हुसैन के साथ हैदराबाद में डोर टू डोर अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन विषय पर आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन सह प्रदर्शनी का आयोजन एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की उत्कृष्टता के 75 वर्ष पूरा होने के मौके पर नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के दौरान भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन क्षेत्र की यात्रा के 75 वर्षों के सार संग्रह के साथ साथ
विजन डॉक्यूमेंट 2047 का विमोचन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ये सम्मेलन एविएशन सेक्टर के भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। This conference is a milestone in the boundless world of aviation, showcasing cutting-edge and pioneering technologies and visionary insights into a aviation industry's future. I am happy to know that some of the highlights of this conference include issues such as green initiatives by aero industries, the impact of artificial intelligence, robotics, and machine learning of avionics, human capital development and infrastructure growth, empowering women in the sector, and encouraging startups for creative disruptions. राष्ट्रपति ने कहा कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान की लैंडिंग करवाकर भारत ने अपनी क्षमता को प्रदर्शित किया है। Whether it is the fate of successful completion of the Mars mission or showcasing the end-to-end capability in safe landing and roving near the moon's south pole, a place considered beyond human endeavor, India has proved that it has the willpower, potential and capacity to accomplish what it sets out to achieve. साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि एरोनॉटिकल सोसाइटी ने देश के विकास में अहम भूमिका निभाई है। The Aeronautical Society of India has worked tirelessly to ensure that not only the aeronautics as a knowledge system grows by leaps and bounds, but it also impacts life of every citizen in a substantial manner. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले भारत की क्षमताओं में जो क्वांटम जंप हुआ है उसमें रक्षा क्षेत्र भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रहा है। इतनी सारी रेगुलेशंस हमने लगा के रखी थी कि आईआईटी के कैंपस में ही ड्रोन या ट्रेनिंग रिसर्च कैंपस में ही ड्रोन विकसित किया जा सकता है, और जिन्होंने ये रेगुलेशंस लगाई थी वही उस ड्रोन को इस्तेमाल भी करते थे। सो क्लैंडस्टाइनली वो कमरा ले लेते थे कहीं आईआईटी में, वहां ड्रोन डेवलप करते थे और बेचते आप ही को थे जिन्होंने कानून बनाया था। मोदी जी ने पिछले 9-10 साल में लगभग 2000 ऐसे कानून हटा दिए जो बाधक बनते थे, उनमें से ये भी था। और आज ड्रोन को डीरेगुलेट किया, उसी तरह से अंतरिक्ष को किया, उसी तरह से नई जियो स्पेशल पॉलिसी आई। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार में निवेश बढ़ाने से उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने भारत के रक्षा क्षेत्र में बदलाव लाते हुए कई रणनीतिक पहल की हैं। अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाने से महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों में भारत की बढ़ती क्षमताओं को रेखांकित किया गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंडों के उदारीकरण ने विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी को आकर्षित किया है। रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों और सहयोग को बढ़ावा दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आगामी 20 नवंबर को नई दिल्ली में दूसरी 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता होने जा रही है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक ताज़ा बयान में यह जानकारी दी गई है। इस बैठक में भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हिस्सा लेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उप प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स और विदेश मंत्री पेनी वोंग शामिल होंगे। इस मंत्री स्तरीय वार्ता के दौरान रणनीतिक रक्षा और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री रिचर्ड माल्स के साथ एक द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर 21 नवंबर को अपनी समकक्ष विदेश मंत्री वोंग के साथ 14वें विदेश मंत्री फ्रेमवर्क डायलॉग में हिस्सा लेंगे। इससे पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 11 सितंबर 2021 को आयोजित हुई थी। वहीं खासतौर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात की जाए तो वो पेनी वोंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। 14वें विदेश मंत्री फ्रेमवर्क डायलॉग में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें सितंबर 2021 में पहली
भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई थी और उसके बाद अब ये 2+2 जो मंत्री स्तरीय वार्ता है ये आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंडोनेशिया के दौरे से लौटते हुए सिंगापुर में थोड़ी देर के लिए रुके। इस दौरान उन्होंने सिंगापुर में INA मार्कर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। 1955 में नेशनल हेरिटेज बोर्ड ऑफ सिंगापुर ने इस स्मारक का निर्माण किया था। इस स्मारक का प्रस्ताव और आधारशिला स्वयं नेताजी ने रखी थी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू मालदीव की यात्रा पर हैं। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने एक भोज का आयोजन किया। किरेन रिजिजू इस पर उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि आधिकारिक भोज में मालदीव की आतिथ्य की झलक देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर मानहानि मामले में कोर्ट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने सभी पक्षकारों से 24 नवंबर तक कोर्ट में लिखित दलील जमा करने का निर्देश दिया है। जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आज पंजाब के अमृतसर कोर्ट में लाया गया। उन्हें शिरोमणि अकाली दल के महासचिव विक्रम सिंह मजीठिया द्वारा दायर मानहानि मामले के सिलसिले में अदालत में वो पेश हुए। संजय सिंह को दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में लाया गया। मानहानि मामले में अब अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।